Hmm. Hello, sir. Welcome to our podcast. So, today we have with us the Executive Director of Double Tiger Tea Group, Mr. Jay Patel. Mr. Jay Patel, can you share a bit about your background, including your education and current role in the family business? Okay. Hello to LG University. Yeah. Yes. Okay. The students of LG. I am Jay Patel. I have done my masters in MBA in specialization of family business and entrepreneurship through Nirma University. Currently, I am looking as a executive director of our organization of Double Tiger Tea Group. We have one of the best quality tea manufacturers of Gujarat, and we are currently present in 4 states: Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Chhattisgarh. So, can you elaborate why did you choose an MBA from Nirma University? See, basically, MBA is a MBA, and especially in a family business, MBA typically gives the all aspects and all the knowledge of all aspects of the every part of business, like accountancy, sales, marketing, HR. If you did the MBA in regular course, there are only 1 year 2 specialization, Yeah. and MBA in family business there are multiple specializations like family business and entrepreneurship. Yeah. In family business, we have to learn that all how the family business runs, how do you convert the family business in the professional corporate house, the marketing, the sales, the HR, the finance, also the PR, the marketing part and advertising and all things. Okay, so can you share a brief history about your organization? Okay. The Double Tiger Tea Group has been founded by my dad, Mr. Rohit Patel, in 1999. Our organization has been set up in a single room and started as a typically family business with the small amenities and the small investment. Gradually, the business grows to a next level, and currently we are into fully automated zero human touch manufacturing facility with a per day capacity of 90 tons. We have manufacturing teas, we have blending capacity of 90 tons per day. We have our storage capacity of 25 lakhs kilogram. Our organization has been set up as sales and distribution channel of 350 distributors across the 4 states. Currently, we have 120 people in our sales team and 40 to 50 people in our production staff. Okay. So, how do you manage a large workforce like this? See, if you want to create something new, something unique business, there is always this part include like the managing the people. Without people, there are no business. Yeah. Ultimately, you are doing the business with the people. Yeah. So, can you think of a time when clear communication really made a difference in business decision at Double Tiger Tea Group? Obviously, communication is a crucial part. If you are not able to communicate your message in a right way, there are always have to a conflict with your team, with your workers, with your colleagues, with your suppliers, with your customers. Communications plays a very crucial role in every business. Like if I have to tell my worker that you do this job, I don't instruct him in English. I have to put કે ભાઈ આ વસ્તુ કરવાની છે. There is a communication in which he understand that कि મારે આ વસ્તુ કરવાની છે. So there is a communication in Gujarati, in which in whatever language he understand, I have to communicate them. So without communication, there is no business. There is nothing else in world that you are able to do without communication. So could you elaborate कि आप अलग-अलग लोगों से अपनी कम्युनिकेशन कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे सप्लायर्स के साथ में अलग, कस्टमर्स के साथ में अलग? देखो, जैसे ही आपने बोला ना कि ये हम कैसे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हो गए, कि मेरे को मेरी बात रखनी है आज,
तो जो सामने वाला जैसे समझ रहा है मेरे को, उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो कैसे समझता है। Yeah. आज आपको आपके फ़ायदे की बात समझाने के लिए मेरे को आपका फ़ायदा पहले देखना पड़ेगा। Yeah. कैसे? बाय एग्जांपल, कस्टमर को एक आप समझाने जा रहे हो तो आप एज अ प्रोडक्ट होल्डर लेके नहीं जा सकते मार्केट में। आपको वो कैसे समझेगा, वो क्यों अपनी प्रोडक्ट लेगा, तो एक कम्युनिकेशन वहाँ पे जुड़ा हुआ है। बट वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो हर बार कम्युनिकेशन में वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सामने वाले के शूज में अपना पैर रख के देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो वो कम्युनिकेशन ओनली वन वे है, देयर इज नो टू वे, एंड देयर इज अ चांस कि आप बोल सब रहे हो, वो ग्रास्प नहीं कर रहा है। दूसरा आपने पूछा कि कोई सप्लायर है, कोई टीम है। अगर मेरे को धंधा करना है, अगर बिजनेस करना है, तो ये सब एस्पेक्ट है। कस्टमर से मेरे को कम्युनिकेशन करना है, सप्लायर से करना है, मेरी टीम से करना है। आज हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी टीम है, तो मेरे को टीम को ऐसा कम्युनिकेशन सिखाना पड़ेगा कि आज मैं बोलूँ या मेरा कोई भी टीम मेंबर बोले, वो आगे सेम ही हो। तो वो भी टीम कैसे समझ रही है, तो टीम कैसे समझ रही है मेरे को वो जानना है कि उनका क्या लेवल है, वो कैसे बिजनेस को देखती है, वो कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। कभी कभी ये होता है कि उनको प्रॉब्लम को आता है सॉल्व करना, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करें, अपनी बात कैसे रखें, अपनी बात दूसरों को कैसे समझाएं। तो ये मेरे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है और मेरी हर एक टीम के लिए और हर एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन कि आप कैसे दूसरों को समझाते हो, अपनी बात रख रहे हो, उसकी बात सुनते हुए रख रहे हो। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या है, लोग यही समझते हैं कि मैं मेरा बोल दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका सुनना, कि वो क्या कह रहा है। अगर आप उसको सुनेंगे ही नहीं तो कैसे उसको कोई आंसर करोगे। What are some creative ways which you have connected with teams and customers? क्रिएटिव वेज, फॉर एग्जांपल, एक मेरा टेक्निक है फॉर कम्युनिकेशन कि जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाना है। मैं बहुत टाइम ऐसे करता हूँ कि किसी को भी एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल थियरी उसको समझानी है, तो मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कि वो कैसे समझ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक रूल है कि एक कोई ऐसा इंस्पिरेशनल थियरी है जो यूएसए का है, बट उसको मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से या इंडियन एस्पेक्ट से जोड़ के उसको ऐसे समझाता हूँ कि वो रिलेट कर पाए। अगर वो रिलेट नहीं करेगा तो उसका जो कोर आइडियोलॉजी है वो समझेगा नहीं, और अपना कम्युनिकेशन का काम ये है कि उसको वो कोर आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई वो कैसे समझ रहा है, कैसे रिलेट कर पा रहा है। अगर उसको रिलेट नहीं होगा तो वो समझेगा नहीं और आगे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो क्रिएटिव वे है ना, तो ये एक बहुत अच्छा क्रिएटिव वे है कि आप उसको उसके प्रैक्टिकलिटी के एक संदर्भ में आप उसको समझाओ। जैसे सेल्समैन, हमारे यहाँ पे एक हायरार्की होती है सेल्स टीम में। एक बेसिक लेवल पे जो लो लेवल ऑफ डेजिग्नेशन होता है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके ऊपर सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके ऊपर सेल्स ऑफिसर होता है। तो एक पूरा हायरार्की है सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हर रोज मार्केट में जाके वो रिटेलर्स से बात करता है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये है, वो ब्रीफ देता है, वहाँ से ऑर्डर लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करता है। अभी सेल्स पर्सन को जो तकलीफ आ रही है, अगर मैं उसको यहाँ पे बैठ के क्लासरूम के जैसे सिखाने जाऊँगा तो वो नहीं समझेगा। तो उसको क्रिएटिव्स क्या चाहिए, उसको मार्केट का कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा मेरे को कि देख ये ऐसा करता है तो ऐसा होता है तेरे को। हाँ, वो बोलेगा हाँ सर ऐसा होता है, तो उसको वो अच्छा लगा कि मैंने उसको उसकी तकलीफ समझ के उसी का एग्जाम्पल दिया। तो ये क्रिएटिव वे है एक कि अपना काम हो जाए, अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हो जाए, बट उसको आप उसकी भाषा में समझाओ। वो भाषा कोई भी हो, अल्टीमेटली आप उसको उसकी जो भी परिस्थितियाँ है, उसका जो काम है, उसके हिसाब से आप उसको समझाओगे तो वो समझेगा। Can you think of an example how you have adjusted your communication style to work effectively with different people? सबसे बेसिक एग्जांपल है, जब मैं मेरा MBA ख़त्म हुआ और जब हम रियल बिजनेस में आए तो हमारा एक सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था जो लगभग 15-20 सालों से पुराना है, और वो ऐसे ऐसे विलेजेस में है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट वो लोग सप्लाई करता है। तो एक अपना खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो उसका एक छोटा सा गांव है, Tier 3 गांव है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा बिजनेस देता है अपने को।
50 लाख 60 लाख से ज़्यादा पर मंथ बिजनेस करता है हमारे साथ। अभी मैं उसको वो समझाने गया कि देख ये ऐसी टेक्निक है, आप ऐसे समझोगे, आप ऐसे करोगे तो ये बिजनेस ग्रो होगा। बट उसका ये भी एक वहाँ पे एक बैरियर आ रहा था। मैं उसको बहुत प्रोफेशनली समझाने जा रहा था कि ये मैट्रिक्स है, ये टेक्निक्स है, ये ऐसे आप अपने पे एसओपीज लगाओगे तो ये होगा, ये होगा। जब मैंने उसको उसी की भाषा में गुजराती में समझाया कि તમે આવું કરશો ને તો આવું થશે, तो उसको उतना लाइट हुआ कि ये तो बराबर है। तो मेरे को वहाँ पे मेरा एमबीए का डिग्री बाजू में रख के उसको वो समझाना पड़ा कि भाई ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में है, तेरा और मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना कि अपने को धंधा बढ़ाना है। वो बोला हाँ सब बढ़ाना है, तो ठीक है चलो हम ये करते हैं, ये करोगे तो ये होगा, हाँ तो ये करूँगा। वहाँ पे मेरे को प्रोफेशनलिज्म से नहीं, मेरे को उसको उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को अडेप्ट करके मेरे को आगे बढ़ना पड़ा। वरना अगर मैं मेरा ही कम्युनिकेशन वहाँ पे देता कि इंग्लिश में उससे बात करता या मेरा सेक्रेटरी बात करता उससे, मेरी टीम बात करती, तो एक बैरियर रहता हमेशा कि उसका मैसेज मेरे तक नहीं आता, मेरा मैसेज उस तक नहीं आता। तो ये एक ऐसा है कि कभी कभी हर एक चीज़ों में ऐसा करना पड़ता है। सपोज हमारा महाराष्ट्र चालू है, यही एग्जाम्पल में महाराष्ट्र में जो भी वहाँ के सिटीजन्स है उनको अपनी भाषा से बहुत प्यार है। वो लोग मराठी को पहले प्रेफरेंस देते, बाद में हिंदी को देते हैं। तो जब भी आप एक मराठी मैन को एक मराठी में ग्रीट करते हो ना तो वो बहुत खुश होता है। तो ये टेक्निक है। या देखो अपने को भी गुजराती में कोई बोलेगा, इंग्लिश में उसको बोलोगे तो अच्छा लगेगा, बट अपनी भाषा में जब आप उसको बोलते हो तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छी तरह से बात सुनता है वो। और फॉरेन क्लाइंट्स में भी आपको ऐसे अडाप्ट करना पड़ता है अपना कम्युनिकेशन? फॉरेन क्लाइंट में दो तरह के फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जो जिससे हम डायरेक्ट डील करते हैं और जिसके बीच में एक एजेंट या मीडियोकर आदमी कोई रहता है। जो मीडियोकर रहता है वो एक अच्छे से मैसेज कन्वे करता है। और फॉरेन क्लाइंट्स में क्या है, दे आर मोर प्रोफेशनल देन आर इंडियन क्लाइंट्स। लाइक इंडियन क्लाइंट्स में बहुत सारी चीज़ें पीछे इन्वॉल्व है, लाइक वो इमोशंस से जुड़ा है, वो रिलेशन का वैल्यू करता है, वो देखता है कि हम अपना रिलेशनशिप कितने साल पुराना है। और जो फॉरेन क्लाइंट्स है वो बहुत प्रोफेशनल है। अगर आप उसको कॉस्ट, उसका मार्जिन, उसका एक वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं दे सकते हो तो ये सब नहीं देखेगा ये। तो दोनों सिनारियो में अपने को कम्युनिकेशन उसकी तरह से अडेप्ट करना है। अगर कोई फॉरेन क्लाइंट है तो उसके साथ वेरी प्रोफेशनल रह के उसको उसके टाइम का रिस्पेक्ट करके, उसके कम्युनिकेशन, उसका जो भी लैंग्वेज है उसका रिस्पेक्ट करके अपने को वो धंधा करना है। और यहाँ पे उसके जैसे अपने डोमेस्टिक क्लाइंट है तो उसके हिसाब से करना है। बट दोनों का कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो दोनों में सेम स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर सकते। So how do you make sure your leadership style stays in sync with the company's vision and mission? लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करना एक लाइन में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे जो विज़न है वो बहुत बड़ा विज़न होता है जो आगे के 25 साल 30 साल के लिए कंपनी सेट करती है। और एज अ लीडर हमको ये भी चेंज करना पड़ता है कि आज हम लास्ट ईयर जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे शायद वो आज के टाइम पे वो उतनी यूज़फुल है भी नहीं, शायद ऑब्सोलेट हो गई है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि कैसा माहौल है, कैसा कल्चर है, कैसे मार्केट रिस्पॉन्स कर रहा है, और उसके साथ साथ हमको अपनी लीडरशिप स्टाइल भी एक डेवलप करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल जो आपने एक बात की कि विज़न के साथ अलाइन कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली एट अ टॉप पोजीशन वी आर वेरी क्लोजली वर्किंग विद द एओपीज जो हमारा एनुअल ऑपरेशन प्लान रहता है। तो वो एनुअल ऑपरेशन प्लान इज अ पार्ट ऑफ आवर विजन, इज अ पार्ट ऑफ आवर मिशन, इज अ पार्ट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। So according to that AOP, we have created a strategy for the 1 or 2 quarters, and 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट पे से जो अगर हमको कुछ ऐसा लगता है तो हम स्ट्रेटजी में भी अडेप्ट करते हैं कुछ ना कुछ, उसको इसको थोड़ा इम्प्रूव करें, इसको नहीं करें, इसमें क्या फेलियर आया। तो एज अ लीडर हमको हमेशा ओपन रहना पड़ता है, हम रिजिड नहीं रह सकते। अगर रिजिड रहेंगे तो विजन और अपना जो मिशन है वो थोड़ा दूर चला जाएगा अपने से। So when the team market gets tough, how do you keep yourself and your team motivated and inspired? See, not the team market gets tough. Every market is a tough market. If you are not very confident about your product or about your business, so
it is our responsibility to get motivated by yourself or motivate your team, or rather than the motivate your team, you have to inspire your team that they will do their job by themselves, not by the force, not by the pressure, not by the penalty, not by the fear of penalty. So मार्केट टफ है, धंधा टफ है, बट अगर अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में या अपने पास ऐसी कोई यूएसपी है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पूरा मार्केट नहीं कर रहा है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम कर सकते हैं. सो जब भी ऐसा कोई टाइम आता है तो हम अपने कोर पे फोकस करते हैं कि हमारा कोर क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट का कोर क्या है, वाई वी एग्जिस्ट, आज हम अपने मार्केट में क्यों है. तो तभी हमको जवाब मिल जाता है कि हमने धंधा क्यों चालू किया था. तो उस वही एक वैल्यू है जो एक फाउंडेशन में है. तो कोई भी मुश्किल तब बड़ी नहीं लगती जब अपने कोर में आप देखते हो. और टीम को भी यही सिखाते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो देखो अपने बेसिक्स में, फाउंडेशन में हर एक के नींव में उसका आंसर है. तो वो ऐसे ही एक टीम को मोटिवेट की बजाय तो मैं इंस्पिरेशन में ज़्यादा मानता हूँ. तो ऐसे ही उसको मोटिवेट करते हैं. And what are the tricks which you apply for motivating their employees? The fear factor. Okay. The fear factor means the fear of losing. If you are not doing that, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई और बढ़ जाएगा. कोई और बढ़ जाएगा मीन्स ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है हमारे यहाँ कि हमको करना है. हम चाय बेचते हैं, आज चाय पिलाते हैं, तो मैं सिंपल उसको यही बोलता हूँ कि देख, तेरे गांव में इतने लोग हैं, इतनी चाय पी जाती है, तो तू नहीं चाय पिलाएगा तो कोई और पिलाएगा. अगर तेरे को पिला नहीं है तो तेरी चाय पिएगा. तो सिंपल. तो ये उसको एक मोटिवेट करता है कि मेरे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है, बहुत बड़ा मार्केट बाकी है. तो ये जो फियर ऑफ लूजिंग है, जो आज के टाइम पे आप फोमो बोलते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो एक जनरली हम टेक्निक यूज कर रहे हैं एक हमारी टीम के लिए. और टेक्निक नहीं है, वो बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं. जिसको खुद से आगे बढ़ना है आज, कि उसको अगर देखो किसी को आगे नहीं बढ़ना है तो मैं किसी को खींच के आगे नहीं ले जा सकता. उसको आगे बढ़ना है तो वो हमारी पेस मैच करेगा. तो अगर जिसको आगे बढ़ना है तो उसको कोई लगभग मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है. एंड दिस इज द डायरेक्शन कि कहाँ पे गैप है. और ऑलमोस्ट हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी टीम मेंबर्स हमारे ऑन बोर्ड हो तो हम उसको पहले उसका वाई क्लियर कराएं. वाई मीन्स वाई आर यू हियर, क्यों आप इधर हो. खाली आप 2, 3, 4, 5 साल कंपनी में निकालने के लिए हो या आप ग्रो करने के लिए हो. अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट यू ग्रो आवर ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज उसको ही अंदर से वो नहीं है कि मेरे को ग्रो करना है, तो फिर मैं क्या उसको बोलूँगा कि तू कंपनी ग्रो करेगा. तो वो हम चेक करते हैं, उसको ऐसे ट्रेन करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि देख, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, वी इन्वेस्ट इन आवर टीम, वी इन्वेस्ट इन आवर पीपल, एंड दैट कैरी ऑन. So what future trends do you see coming in the tea industry, and how are you preparing your team to make decisions according to the changes? Team are always confident about taking decisions because we have given enough freedom to our team. We have created a robust culture of decision making. Like we have not rigid organization. Like ये तूने क्यों किया, ये तेरे को सीनियर को पूछना चाहिए था, ये अपना SOP नहीं है. हम उसको ये ट्रेन करते हैं कि तेरे को जो सही लगता है तू कर. उसमें खाली एक ही कंडीशन है कि उसमें अपना धंधा होना चाहिए और अपनी तरीके से धंधा होना चाहिए. कोई पॉलिसी या कोई अपना रूल्स वहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो कर. उसको जब फ्रीडम देते हो तो अच्छे से काम करता है. उसको वो एक अपना सेल्फ इन्वॉल्वमेंट लगता है, उसको एक अथॉरिटी मिलती है कि ये मेरा डिसीजन है. और जो फ्यूचर ट्रेंड्स है, तो फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए अगर बात करें तो we are developing new products like premix, flavored tea, green tea, and the other variety of teas. So we are well prepared for the future, and we are well prepared for the present also. Okay. So one last question. Anything would you like to share with the that would be beneficial for the young people who would be entering the corporate world in a couple of years? I am
working with many young talents in our corporate house too, and the three major things I see that the young people have been missed, that one is hard work, second is time management, and third is the patience. आज की जनरेशन को सब ऑनलाइन करना है, आज की जनरेशन को खाली स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन उनकी खुद की है कि कैसे स्मार्ट वर्क होता है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। आज की जनरेशन प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती। आज की जनरेशन में स्लाइट लेक ऑफ विजन है कि जो उनके पास आज रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज को अगर वो एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें तो अनबिलीवेबल एक रिजल्ट मिल सकता है। और जो पेशेंस है, पेशेंस नहीं है, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। लोगों को लगता है कि आज रिलायंस बन जाना है, पर वो नहीं समझ रहे कि 50 साल लगे हैं एक रिलायंस बनाने में। तो जस्ट ये तीन चीज़ें हैं, अगर यंग टैलेंट इस पे फोकस करता है तो कुछ बात ही और होगी। Thank you, sir, for your valuable time.